باہر سے ایک ذمہ دار منگاتا ہے, کوئی کاروباری بندہ منگاتا ہے, 100 دفعہ منگائے, حکومت نے کیوں خریدی اس سے؟ جب حکومت نے خریدی تو آپ مجرم ہو, اور اس کا علاج ہے کاکڑ کو الٹا لٹکائیں. آئندہ شہباز شریف صاحب ترلے کر کے باہر گئے مانگنے کے لیے, یہاں 1 ارب روپیہ ایم این اے کو بانٹ دیا, اور ترفیٹے کو یار ترلے کر کے مانگ رہے ہو, ادھر ایم این اے کو بانٹ رہے ہو. کوئی شرم یا نہیں ہے, کوئی عقل نہیں ہے, نہ چھڑ میں. دفعہ ملٹری نے انوالومنٹ کی ہے سیاست کے اندر, سیاستدانوں کی وجہ سے کی ہے. ضیاء الحق صاحب جو جونیئر موسٹ تھے, سینئر موسٹ کو نکالا, کیا کسی نے پکڑا کہ مجھے آپ آرمی چیف لگاؤ؟ اپنی مرضی سے جونیئر حرکتیں آج ہوئی ہیں. سب سے پہلے بٹو نے کی تھی اپنی حکومت کو دوبارہ. یہ کہہ رہا تھا کاکڑ صاحب کے پیچھے ایک انٹرویو چل رہے تھے کہ جی میں نے تو سستی منگائی, تو ذمہ دار کتنے ہیں, اتنے لوگوں کا نقصان ہوا تو بے شمار لوگ کھانے والے ہیں, ان کا میں نے فائدہ کیا. سوال یہ کاکڑ صاحب, آپ کمیٹڈ سے ذمہ دار سے خریدنے کے لیے, آپ نے مہنگے داموں انہیں بجلی دی ہوئی تھی, آپ نے مہنگے داموں انہیں کھاد بیچی ہوئی تھی, آپ نے مہنگے داموں انہیں بیج دیا ہوا تھا, آپ باؤنڈ تھے ان سے اس قیمت پہ خریدتے. باہر سے ایک ذمہ دار منگاتا ہے, کوئی کاروباری بندہ منگاتا ہے, 100 دفعہ منگائے, حکومت نے کیوں خریدی اس سے؟ جب حکومت نے خریدی تو آپ مجرم ہو, اور اس کا علاج ہے کاکڑ کو الٹا لٹکائیں. آئندہ ٹھیک ہو جائے گا, آئندہ ٹھیک ہو جائے, اس کو عقل آ جائے گی, اس کو ساری سائنس اس کے بعد نکل آئے گی. اتنے جو غریب کا سوچا نا, اس کو سمجھ آ جائے گی. میاں صاحب آپ نے بات کی نا کاکڑ صاحب کی. کاکڑ صاحب نے وہ جو گندم امپورٹ $1 ارب کی گئی ہے نا, اس وقت پاکستان نے بڑی مشکل سے $1 ارب کیسے مانگ کے لیا. آپ کو پتا ہے کہ یہی پرابلم ہے. ترلے کر کے, پھر پچھلی حکومت نے شہباز شریف صاحب ترلے کر کے باہر گئے مانگنے کے لیے, یہاں 1 ارب روپیہ ایم این اے کو بانٹ دیا, اور ترفیٹے کو یار ترلے کر کے مانگ رہے ہو, ادھر ایم این اے کو بانٹ رہے ہو. کوئی شرم یا نہیں ہے, کوئی عقل نہیں ہے, نہ چھڑ میں نہ حیا ہے. وہ سیالکوٹ کا کیا بولتا تھا, جو اس کو خود بھی شرم یا نہیں ہے, نہ شرم ہے نہ شرم ہوتی ہے, کوئی حیا, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. جن کو شرم اور حیا کے میں نے نہیں پتا, وہ شرم حیا کے نام لیتے ہیں. پھر یہی لوگ جو ہیں, جو مسترد شدہ لوگ ہیں, جن سے عوام نفرت کرتی ہے, ان کو پاکستان کے اندر کچھ ریاست کے اندر کچھ طاقتیں ہیں, ان کو حکومت میں لے آتے ہیں. کیا یہ وہ جو طاقتیں ہیں, ان کو پاکستان کی ریاست کا کوئی ان کو خیال نہیں ہے کہ یہ مسترد شدہ لوگ ہیں, انہوں نے لوٹ مار, اور ان سے لوگ نفرت کرتے ہیں. اور پھر ان کو فارم 47 کے تھرو جو اس وقت الزامات لگائے جا رہے ہیں, پورے ملک کے اندر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, تو پھر ان کو حکومت دی جاتی ہے. ایسے میں ریاست کا کیا بنے گا؟ میاں صاحب بات کرتے ہیں ریاست کی اور پاکستانی عوام کی, چند پرسنٹ یہ جو دیکھیں, یہ ٹاپک اتنا سینسٹیو ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ مجھے صحافیوں کے اوپر بھی اور ڈسکشن کرنے والوں کے اوپر بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ چیز کی تہ تک نہیں جاتے. جتنی دفعہ ملٹری نے انوالومنٹ کی ہے سیاست کے اندر, سیاستدانوں کی وجہ سے کی ہے. جب بھٹو صاحب حکومت کر رہے تھے تو کیا ملٹری نے انہیں روکا تھا حکومت کرنے سے؟ اس سے پیچھے میں نہیں جاتا ایوب دور میں, چونکہ میری نظر میں وہ سارا نہیں ہے. جب مجھے ہوش ہے تو ایوب تھا, اور پھر ایوب کتا کے نعرے میں نے سنے, مجھے یاد ہے. اور اس کے بعد بھٹو صاحب آ گئے, عوامی لیڈر, بنگلہ دیش توڑ کے, ادھر تم ادھر ہم. بنگلہ دیش توڑنے کا اصل مجرم تو بھٹو صاحب ہیں. لیکن باہر اگرچہ ایوب کی اور باقی لوگوں کی بھی تھوڑا سا اس کے اوپر ایرر تھا, لیکن یہ ایک اہم کانہ سوچ تھی. لیکن چلو ہو گیا. اب بھٹو صاحب کی ادھر حکومت تھی عوامی نمائندے کی, تو کیا کسی فوجی جرنیل نے انہیں روکا کوئی کام کرنے سے؟ اپنی مرضی سے انہوں نے جرنیل تبدیل کیے. ضیاء الحق صاحب جو جونیئر موسٹ تھے, سینئر موسٹ کو نکالا, کیا کسی نے پکڑا کہ مجھے آپ آرمی چیف لگاؤ؟ اپنی مرضی سے جونیئر موسٹ بندے کو لگا دیا. لیکن جب اسی جونیئر نے دیکھا کہ بھٹو صاحب خلاف آئین بدماشی کر رہے ہیں, الیکشن کے اندر دھاندلی کی ہے انہوں نے, دھاندلی کے باوجود ہارے ہیں, پھر انہوں نے وہی فارم 47 والا کام بھٹو صاحب نے سب سے پہلے کیا تھا, اور قومی اتحاد کی تحریک چلی. یہ جو حرکتیں آج ہوئی ہیں سب سے پہلے بھٹو نے کی تھی اپنی حکومت کو دوبارہ. یہ حرکت سب سے پہلے تو جب 1971 میں پاکستان ڈیوائیڈ ہوا تب ہو چکی تھی یہ والی. نہیں, اس وقت یہ نہیں ہوئی تھی. اس وقت الیکشن جنون ہوئے تھے, الیکشن جنون تھے, میجورٹی کو منورٹی میں بدلا گیا تھا. وہ تو ایک پھر ملک کی سائڈ پہ کر دیا نا, ملک کی سائڈ پہ کر دیا, ملک کی توڑ دیا. ٹھیک ہے نا, جب میجورٹی کو نہیں بدل سکتے تھے تو ملک کی توڑ دیا. لیکن جب بھٹو صاحب کی حکومت تھی اس وقت انہوں نے یہی کھیل کھیلا تھا. چونکہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ نے قصور سے الیکشن لڑا, اور مجھے وہ الیکشن یاد ہے. پہلا بھی جب بھٹو صاحب برسے اقتدار آئے وہ بھی الیکشن مجھے یاد ہے. جب بھٹو صاحب نے جعلی الیکشن کرائی وہ بھی مجھے یاد ہے. تو وہ ایک یہ کھیل انہوں نے کھیلا. اس کھیل کی وجہ سے تحریک چلی قومی اتحاد کی, اور روزانہ مذاکرات ہوتے تھے. نورانی صاحب, مفتی محمود صاحب,
नवाब नसरुल्लाह खान साहब, ये लोग भट्टू साहब से बैठते थे, जब बैठने की बारी आई तो वो किसी बात पे आ नहीं रहे थे। गैर आईनी गैर कानूनी काम किसने किया? सियासी लीडर ने। आइन को रौंदा किसने? सियासी लीडर ने। बेड़ा गर्क अवाम का किसने किया? सियासी लीडर ने। अवाम के राय को किसने रौंदा? सियासी लीडर ने। और फौजी आदमी जिसने ओथ उठाया हुआ कि मैं मुदाखलत नहीं करूंगा, इस सियासी बंदे ने भी ओथ उठाया हुआ कि मैं इलीगल काम नहीं करूंगा। जब इसने आइन की परवाह ना की तो फौजी वो जो अपनी जान देने को तैयार होता है मुल्क के ऊपर, वो अपने मुल्क का तमाशा देखता रहे। फिर ज़ियाउल हक की गैरत भी जागी और उसने जाके गर्दन से पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया। और मैं कहता हूँ ज़ियाउल हक ने ठीक किया। और फिर ज़ियाउल हक के क्या उस एक्ट को बेशुमार सियासतदानों ने अप्रिशिएट ना किया? अगर वो एक्ट गलत था तो सियासतदान साथ क्यों थे? सियासतदान साथ थे ज़ियाउल हक के। तो फिर खाली फौजी ऑपरेशन तो वो नहीं था। इसी तरीके से आगे आ जाएं, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब जो आए हैं तो क्या नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बनते अपने आप को अन्नदाता नहीं बना रहे थे? क्या नवाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से आर्मी चीफ को बदलने के पहले भी बदले, कई आर्मी चीफों को जिच किया अपनी अना के ऊपर, तो क्या मिलिट्री ने को ट्रबल दी? मिलिट्री आराम से बैठी थी। फिर जब परवेज़ मुशर्रफ को बदला एक बैड एटीट्यूड के अंदाज में, एक बिल्कुल भूंडे अंदाज में, तो मिलिट्री के अंदर भी फिर गुस्सा आ गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर इलीगल काम करे तो वो जायज़ है, गैर आइनी काम करे वो जायज़ है, और फौजी गैर आइनी काम करे तो वो आइन पामाल हो जाता है। हमेशा सियासतदान ने बेड़ा कर किया आइन का तो फौज के अंदर गैरत जागी है। अब अभी भी जो इमरान खान साहब ने गलतियां की, जो फौज को बदोबदी, पहले तो फौज ने इमरान खान की सपोर्ट की जब हुकूमत में लेके आए, तो उस वक्त तो खान साहब ने नहीं कहा कि मेरी सपोर्ट मत करो, उस वक्त तो मदद ली। अच्छा, जब खान साहब को गिराने में अपोजिशन एक्टिव हुई तो फौज तो न्यूट्रल थी। फौज ने खान साहब के खिलाफ कोई काम नहीं किया। खान साहब ने नाजायज फौज के ऊपर इल्जाम लगाए कि जी इन्होंने ये न्यूट्रल रहे, ये मीर जाफर, मीर सादक। अब रोज़ाना खान साहब वो तकरीरें कर रहे हैं अवाम के खिलाफ, अवाम के अंदर, जो मुझे भी तकलीफ होती थी कि यार खान साहब क्या कर रहे हैं। जब रोज़ाना ये बातें, अगर मैं ही फौजी हूँ और मैं अपनी जान देने के लिए मुल्क के लिए तैयार हूँ, और मैं देखता हूँ यार ये बंदा रोज़ सड़क पे हमें बदनाम कर रहा है, जिससे हमारा मुल्क का जो नुकसान होगा, हमारा मुल्क जो है वो अपना जो कमान है वो कमज़ोर होगी, तो फिर फौज जब निकलती है, अब यूं ही कह लें कि जो काम आपने ट्रैक्टर से लेना है, अगर वो बुलडोजर से लेंगे तो वो तो तबाही मचेगी। मियां साहब ये जो है तो फिर जब फौज निकली है तो फिर ये तवक्को ना रखें कि वो आपको पपियां करेंगे, प्यार से काम करेंगे। फिर उन्हें डंडा फेरना ही फेरना है। फौजी पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तान का हो, अमेरिका का हो, फौज की तो ट्रेनिंग ही ये है, पकड़ो और आगे से हटा दो। साहब उस दिन डीजी ISPR साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की जो मेरे दिल को लगी। उन्होंने कहा कि ये जो नौजवान है ना, जो नीचे कमेंट्स करते हैं हमारे खिलाफ, ये पब्लिक में बैठ के ना अपने घरों में बैठ के ये DHA में घर लेने को बड़ा अच्छा समझते हैं। हाँ। हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए बड़ा ये इनके ड्रीम है कि इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा जाए, हाँ। इन सोसाइटियों में रहा जाए। तो ये हमारी उन चीज़ों को इनके फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जब उन्होंने ये बात की तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश जागी कि जनाब आप ये पूरा मुल्क टेक ओवर करें। ये जो सियासतदान है, 1000-1500 बंदा हमने पाला हुआ है, और फिर उनके नीचे पूरे खानदान पाल रहे हैं, फिर उनके साथ जो सैकड़ों काटन चौधरी होते हैं वो करप्शन करते हैं, थाने कचहरियां लूट मचाई हुई है। तो फिर फौज क्यों सियासत के ऊपर पाबंदी लगाए पाकिस्तान में, सिर्फ बल्दियात के नीचे निज़ाम दे, ऊपर आके फौज जो है वो पूरे मुल्क को DHA बना दे, पूरे मुल्क का जो तलीमी निज़ाम है वो DHA जैसा बना दे। तो क्यों ना फौज पूरे मुल्क को टेक ओवर करे? उनके पास एक मॉडल मौजूद है DHA का, अपनी यूनिवर्सिटीज का मौजूद है। तो फिर फौज ये, क्योंकि दुनिया पाकिस्तानी अवाम को देखिए उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। म्यारे जिंदगी चाहिए। क्या इराक के अंदर और लीबिया के अंदर कर्नल कज़ाफी और इधर सदाम हुसैन फौजी नहीं थे? फौजी थे। और क्या वो बेहतरीन तरीके से अवाम को सर्व नहीं उन्होंने किया? वो कर रहे थे। अच्छा, हमारे जो 3 दौर गुजरे हैं, अयूब दौर, ज़ियाउल हक का दौर, परवेज़ मुशर्रफ का दौर, इन दौरों के अंदर हमारी मुआशरत बेहतर हुई है, तरक्की के लिहाज से बेहतर हुई है। फिर इन अदवार के अंदर डॉलर स्टेबल रहा है। जब जमहूरियत आती है तो डॉलर को स्पीड लग जाती है। मैं तो खुद इकनॉमिक्स को समझता हूँ अल्लाह के फजल से। ये इसहाक डार ने क्या बजट बनाना है, मैं अगर बजट बनाऊँ तो इसहाक डार साहब के मतलब क्या ले पूछते भी जैसा बजट नहीं बना सकती। मतलब मुझे सेंस है। अब ये डॉलर ऊपर क्यों चला जाता है अब जमहूरियत में, और फौजी दौर में क्यों डॉलर स्टेबल रहता है? ये लुटेरे आ जाते हैं, लूट मार शुरू करते हैं, और इनके पैसे बढ़ते ही तब है ये डॉलर महंगा होगा, चूंकि पैसे इनके बाहर पड़े हैं। ये अमीर हो जाते हैं डॉलर महंगा करने से। बहरहाल अभी इशू ये है कि
जो प्रॉब्लम पैदा हुई, जो मेरी कोशिश थी, किसी हद तक मैंने समझाने की कोशिश की, जो समझी नहीं गई कि खान साहब की जो जेन्युइन गलती है कि अपने खिलाफ अदम एतमाद के अंदर मिलिट्री को और अमेरिका को जो इन्होंने चैलेंज किया, जो गलत था। अमेरिका के खिलाफ बयानिया भी खान साहब का गलत था, अगरचे साइफर दुरुस्त था, पर खान साहब का यह बयानिया गलत था कि वो साइफर ने बदल दिया, वो साजिश कर दी। साजिश कौन सी थी? भट्टू साहब पीपल्स पार्टी का, नून लीग का हक था, वो अदम एतमाद करते, आपका हक था, आप रोकते। आपने अपनी अदम एतमाद रोकी ही नहीं, कोशिश ही नहीं की। किसी एक एमएनए का नाम बता दे जिसको रोकने की कोशिश की हो, किसी एक एमपीए का नाम बता दे जिसको रोकने की कोशिश की हो। जब आपने अदम एतमाद रोकी नहीं है, उन्होंने कर दी है, तो आप इल्जाम कभी अमेरिका पे लगा रहे हैं, कभी अदारों पे लगा रहे हैं। अब मेरी कोशिश थी कि इस चीज को डायलॉग करके पब्लिक को समझाएं कि खान साहब अपनी नलायकियों से गिरे हैं, फौज ने नहीं कराया। अच्छा, अब वो ये बात दलील से समझाने के बजाय डंडे से समझाने की कोशिश की उन्होंने। जब डंडे से समझाने की कोशिश की है तो पब्लिक बजाय उस चीज को पॉजिटिव लेती, वो उल्टा मजीद फौज के खिलाफ हो गई। अब ये गलती तो फौज की है जो इन्होंने डंडा इस्तेमाल कर मुसलसल किया, जो कि नहीं करना चाहिए था, दलील इस्तेमाल करनी चाहिए थी। दलील से बात करते तो आज खान साहब मुझ पाते फिरते, लेकिन जब इन्होंने दलील नहीं पकड़ी, डंडा पकड़ा, तो अवाम हमदर्दी के अंदर भी उनके साथ है। ये गुफ्तगू हो गई 9 मई के हवाले से। अब एक बड़ा जो है ना, वो कहते हैं मसूबाना सा सवाल है, आपकी सियासी जो बसीरत है उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि खान साहब जो हैं वो जेल से कब तक बाहर निकलेंगे या कितनी ड्यूरेशन में बाहर आ सकते हैं? देखिए, अल्लाह सोने को जो मंजूर है वो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि खान साहब बाहर नहीं आएंगे। जो हालात हैं, जो उनकी स्टाइल है, खान साहब की जो जुर्रत है और खान साहब का जो ना झुकने वाला एक स्टाइल है, वो ना कंप्रोमाइज़ करेंगे, ना अपनी गलती का किसी गलती को तस्लीम करेंगे, और ना ही बाहर आने का तो अमकान मुझे तो नज़र नहीं आता। आप क्या समझते हैं कि क्या ये रियासत इस तरह के माहौल को कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकती है कि जब पोलराइजेशन है, नौजवान इन चीज़ों को मान नहीं रहे, चीज़ें कंट्रोल से बाहर है, आए रोज़ कहीं पुलिस को मार पड़ रही है, कहीं ख्वाजा सरा जो हुकूमत के अदारों को वॉयलेट कर रहे हैं, कहीं भी हुकूमत की रिट नज़र नहीं आती। हर बंदा जिसका दिल चाहता है वो हुकूमत की रिट को चैलेंज करके बैठा है। कच्चे के डाकू हैं, वो काबू से बाहर हैं, उधर बलूचिस्तान से बुकटी आके उनको ख़त्म कर रहे हैं। कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, सारे जो डाकू हैं। आप क्या समझते हैं कि रियासत कब तक इन हालात की मुतहम्मल हो सकती है? सोल्यूशन क्या है? देखिए, हर रोज़ हमारा नुकसान हो रहा है। इलेक्शन हुए हैं, पहली बात तो ये है कि खान साहब या तरीक़न साहब ये कभी नहीं मानेगी कि ये असम्बलियाँ दुरुस्त हैं और उनका जो मैंडेट चोरी किया गया। जिन्होंने चोरी किया वो कभी नहीं मानेंगे कि हमने चोरी की है। अदालतों में ये कैपेसिटी नहीं है फैसले करने की, और अवाम को सब तमाशा नज़र आ रहा है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि इस गवर्नमेंट को ख़त्म करके तहरीक इंसाफ के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ इंटरिम गवर्नमेंट दोबारा बनाई जाए, केयर टेकर गवर्नमेंट, और वो केयर टेकर गवर्नमेंट जो बने वो 2 साल के लिए बने। सबसे पहले अदालती इस्लाहात करें, सियासी इस्लाहात करें। वोट डालने का जो हक हर एक को दिया गया है ये नहीं होना चाहिए। एक तरफ 70 जाहिल और फ्रॉडिये लोग हों और एक तरफ 30 समझदार और मुखलस लोग हों, तो 70 फ्रॉडियों की बात मानी जाएगी। जमहूरियत तो ये है। इस जमहूरियत का मैं 2002 से कायल नहीं हूँ। ये अमेरिका में है या बरतानिया में, जहाँ भी यह गलत है। वो अलग बात है कि ये वायरस उन्हें नुकसान नहीं दे रहा, हमें यह वायरस नुकसान देना शुरू कर गया है ये वायरस। इसका सब राय लोगों की राय आनी चाहिए, हर आवारा बंदे की नहीं। इलेक्शन लड़ने का अहल कौन होना चाहिए, इसके ऊपर गौर व फिक्र होना चाहिए। हर चोर लफंगा जो टैक्स चोर है वो इलेक्शन लड़ रहा होता है, देखना होगा कि इलेक्शन कौन लड़ सकता है। इसी तरीके से जो अदलिया के अंदर जो जजेस पिक एंड चूज से आते हैं, क्या उनकी क्या उनकी कैपेसिटी होती है कि जिसने 10 साल वकालत की है, चोरों को छुड़ाया है, कातलों को छुड़ाया है, उनके लिए झूठ बोला है अदालतों के आगे जाके, इस 10 साल का तजर्बा, फ्रॉड का जो तजर्बा है, झूठ बोलने का तजर्बा है, उसके ऊपर वो जज बन जाता है। हाई कोर्ट का जज बन गया जी, क्या ये 10 साल वकील रहा है? तो बना किसने दिया? हुकूमत ने। तो क्या उनके अंदर अहलियत होगी कोई इंसाफ करे? जो 10 साल झूठ बोलता रहे, जो 10 साल चोरों की वकालत करता रहे, वो जज बन के क्या करेगा? जज वो आना चाहिए जो इम्तिहान दे के आए, जैसे CSS करके बच्चे आते हैं। ये जो सेशन जज हैं सिर्फ यही हाई कोर्ट में जाने चाहिए। अगर जो बाईपास करके डायरेक्ट जो जजेस आते हैं, ये रास्ता बंद करना पड़ेगा। तो अदालती इस्लाहात भी करें, सियासी इस्लाहात भी करें, 2 साल इंटरिम गवर्नमेंट लेके आए जो मुआशी तौर पे लोगों को स्टेबल करें और सियासत के अंदर करार आए। और मैं समझता हूँ कि अगर ये फार्मूला पेश किया जाए इमरान खान साहब के आगे,
تو شاید وہ بھی اس فارمولے پہ مان جائیں کہ ٹھیک ہے یہ گورنمنٹ ختم ہوتی ہے، نئی انٹرم گورنمنٹ بنے تمام سیاسی جماعتوں کے مشورے سے، اور وہ 2 سال بعد الیکشن کرائیں، اور انشاءاللہ تعالی جب الیکشن متناسب نمائندگی بھی ہوں گی اور عدالتی نظام جو ہے وہ کمپٹیشن کے اوپر آئے گا، پک اینڈ چوز سے ججز نہیں آئیں گے، جتنے ججز ڈائریکٹ آئے ہوئے ہیں ان سب کو فارغ کریں، وہ ججز جو صرف اور صرف مقابلے کے امتحان دے کے جج بنے ہوئے ہیں اور کرتے کرتے وہ سیشن جج بنتے ہیں، صرف سیشن جج ہی ہائی کورٹ میں جائیں اور ہائی کورٹ کے جج ہی سپریم کورٹ میں جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارا پروگرام ہے وہ اختتام تک پہنچتا ہے، اس کے ساتھ کہ پاکستان جو ہے وہ ہماری ریاست ہے، اس کو ترقی کرنی چاہیے اور اس میں عدل و انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ مجھے اور میاں جلیل احمد شرک پور صاحب کو دے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔